नमस्ते, खुश रहो बढ़िया। Myself, Dr. Ramveer Singh Meena, Assistant Professor, Sanskrit and Yoga Department, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women University. Today we discuss vitamin A prophylaxis. So now we focus on slide. In previous lecture, I had discussed about National Nutrition Program, Intellectual or Development Disability Program. Government has decided several nutrition program like, तो मैंने कहा था आपको ये प्रोग्राम याद करने हैं, ये 4-5 नाम है, ये आपको याद होना जरूरी है कि नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम और अक्षय पात्र प्रोग्राम। आज अपन बात करेंगे विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस। This program was launched in 1970 by the Ministry of Health and Family Welfare with one objective to reduce the disease and preventing blindness due to vitamin A deficiency. तो जो कंट्रोल नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम था उसके तहत भी विटामिन ए सप्लीमेंट पहुंचाया जा रहा है उस प्रोग्राम के तहत। तो विटामिन ए प्रोफाइल काफी इंपॉर्टेंट है जो ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए जो विटामिन ए की कमी से हो रही है। इसकी डेट आपको याद रखनी है, कब लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम, 1970 को। It is centrally sponsored program under the National Child Survival and Safe Motherhood Program 1994. It was started with 7 states with severe program. Later it was extended country. Under this program, children aged 6 months to 6 years were to be administered a mega dose of vitamin A and 6 monthly intervals. तो कई जगह 0 to 3 ईयर भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। 6 months to 6 years. The priorities vitamin A administration. The program was revised to give 5 mega doses at 6 month interval to children 9 months to 3 years of age. In view of adequate supplies of vitamin A, the target group has been revised to cover children 9 months to 5 years since 2007. तो विशेषकर 9 महीने से 5 साल के बच्चों को इसमें कवर किया गया है। 6 ईयर भी ले सकते हो 6 मंथ्स के इंटरवल में, यानी एक डोज देने के बाद कम से कम 6 महीने के बाद दूसरी डोज देनी होती है। The main objective of this program was to decrease the commonsense of vitamin A deficiency from current 0.6% to 0.5%. The main strategy was given to provide health and nutrition education to increase colostrum feeding, exclusive breastfeeding for the first 6 months, then introduction of complementary feeding thereafter, and adequate intake of vitamin A rich food. सबको पता है कि विटामिन ए रिच फूड कौन कौन से हैं, उनके बारे में जन जागरूकता फैलाना, और जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जो वेजिटेरियन लोग हैं जो, और मांस में इसका काफी अच्छा स्रोत है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल। तो जितने भी विटामिन ए रिच फूड है उनका सेवन करना चाहिए। प्रोफाइलेक्टिक विटामिन ए एज पर फॉलोइंग डोजेज शेड्यूल, ये शेड्यूल आपको याद रखना है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा तो शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1 लाख IU एट 9 months विथ मीजल्स इम्यूनाइजेशन, और 2 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट होती है एट 16 to 18 months विथ DPT बूस्टर, ठीक है। मीजल्स इम्यूनाइजेशन के साथ कितना 1 लाख IU लगेगा, और जो 9 मंथ पे लगता है सब मीजल्स का टीका सबको पता है, ठीक है। और 2 लाख IU 16 to 18 month की में DPT बूस्टर, DPT की जो बूस्टर डोज लगती है अंतिम वाली उसके साथ, एंड 2 लाख IU एवरी 6 मंथ, जो इंटरवल 6 मंथ इंटरवल में लग रहा था अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि 6 मंथ से 5 मंथ तक जो 6 मंथ इंटरवल में लग रहा है, कितना लगाना वो 2 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट। तो ये डोजेस जो रेशियो है वो आपको याद रखना है। Thus, a total
of 9 mega doses are to given from 9 months of age up to 5 years. All children those are suffered from xerothemia are to be treated at health facilities, given first dose of vitamin A if they have not received it in the previous month. It is implemented through the PSC, sub-center, female multi-purpose worker and other paramedics at the village level. Sub-health center are responsible for administering विटामिन ए सॉल्यूशन. तो ये कहां से ये प्राप्त होते हैं या किन किन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, कहां से ये ऑर्गेनाइज होते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं इसको, ये सेंटर पीएससी सब हेल्थ सेंटर, यहाँ से आप ले सकते हो. द प्राइमरी फोकस शुड नाउ बी ऑन sustainable food-based approaches to combat vitamin A deficiency, to increase local production and consumption of green leafy vegetable and other plant food. Those are rich source of carotenoids. Green leafy vegetable, many fruits and other plant food source of good source of folate, vitamin C, iron, calcium and other micronutrients. So how we aware take benefit प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अनेक प्रकार के अभियान चला रहे हैं, तो इन सब चीज का हमें जागरूकता के माध्यम से लोगों को पहुंचानी चाहिए. या जो ग्रामीण स्तर के पीपल हैं उनको जागरूक करना चाहिए, जिससे ये डिसीज से जिससे न्यूट्रिएंट उनको मिलते रहे और वो बीमारी की चपेट में ना आ पाए. क्योंकि अगर हेल्दी फैमिली रहेगी तो राष्ट्र निर्माण में वो अच्छा सहयोग कर पाएगी. आज इतना ही काफी है, ना सभी सेंटेंस में आप लिख सकते हो. कौन कौन से इसकी डोज याद रखनी है. तो आपको कब ये लॉन्च हुआ था, डेट 1970, और विटामिन ए रिच फूड कौन कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप सब जानते हो, जब विटामिन पढ़ाते हैं क्लास में सब पता है आपको. और इसकी रेफरेंस बुक हैं ये, और यहाँ से वही क्वेश्चन, राइट एनी 5 वेजिटेरियन सोर्स ऑफ विटामिन ए, आराम से लिख सकते हो आप. 2 नंबर में पूछा जा सकता है. तो एक्सेप्ट विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, तो 5 नंबर में इसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो. आज के लिए बस इतना काफी है. थैंक यू.